یہ ایک ایسا واٹر بیئر ٹارڈیگریڈ ہے جس میں 10,000 سے زیادہ قسم کے وائرس موجود ہیں۔ اگر اسے ذرا سا بھی چھو لو تو تم ہزاروں لا علاج مرضوں کا شکار ہو سکتے ہو۔ دشمن اسے دیکھ کر بھی دور رہتے ہیں، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو میری آنکھیں چمک اٹھی۔ پھر میں نے سب لوگوں کی حیرت بھری نظروں کے سامنے اس واٹر بیئر کو سیدھا نگل لیا۔ آس پاس کے لوگ مجھے گالیاں دینے لگے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس چیز کو نگلنے کے بعد شاید 3 دن بھی زندہ نہ بچوں، مگر میں اس بات پر بس تحقیر سے مسکرایا، اس لیے کہ چند گھنٹوں بعد ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ اس وقت بے شمار مانسٹرز پوری بلو سٹار زمین یا دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ عام لوگ ان مانسٹرز کے سامنے ایک ذرا سے بھی مقاومت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، جبکہ وہ انسان جو پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا تھے فوراً غیر معمولی طور پر طاقتور ہو گئے۔ اس قدر کسی کے جسم میں زیادہ اور سنگین بیماریاں تھیں، اسی قدر اس کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ کسی کو آنکھوں کی بیماری ریڈ آئیز ڈیزیز تھی، بیداری حاصل کرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے تباہ کن لیزر نکلنے لگے اور وہ فوراً ایک سپر ہیرو جیسا ہستی بن گیا۔ لیو گروپ کے لیو ریون پہلے ہی ایک نہایت نادر جینیٹک بیماری میں مبتلا تھے۔ اس کے والد لیو کائلونگ نے اس کا علاج ڈھونڈنے کے لیے دنیا بھر کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا، لیکن کسی کو خبر تھی کہ یہ مصیبت ہی اس کے لیے نعمت ثابت ہوگی۔ جب بیماری کی تبدیلی کا دور شروع ہوا، لیو ریون نے فوراً افسانہ کلائمیٹی اسکیکرڈ باڈی کو بیدار کر لیا۔ اس کی تربیت اور قوت حاصل کرنے کی رفتار عام بیدار شدہ افراد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ تھی۔ وقت کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان خوف کی علامت بن گیا اور ریون ڈیمون ایمپرر کے نام سے مشہور ہو گئے، اور میں پچھلی زندگی میں صرف اس لیے معاشرے کے سب سے نچلے طبقے کا حصہ بن گیا تھا کیونکہ میرا جسم بالکل صحت مند تھا۔ آخر میں مجھے لیو گروپ نے پکڑ لیا اور قانون مائنز میں مزدوری کے لیے بھیج دیا، جہاں میں محنت کی شدت سے جان گوا بیٹھا، لیکن خوش قسمتی سے آسمان نے مجھے دوبارہ زندگی کا ایک اور موقع دے دیا۔ میں نے موبائل پر تاریخ دیکھی، بیماری کی تبدیلی موٹیشن کے آنے میں ابھی 1 مہینہ باقی تھا۔ اب میرے پاس تیاری کے لیے کافی وقت تھا، اتنا کہ میں مختلف قسم کے وائرسز جمع کر سکوں۔ لیو ریون، پچھلی زندگی میں تمہارے لیو گروپ نے مجھے غلام بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، مگر اس زندگی میں نتیجہ شاید الٹا ہونے والا ہے۔ لیکن وائرس جمع کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ سب سے پہلے مجھے کچھ نقدی پیسوں کا انتظام کرنا تھا، اس کے بعد میں نے فوراً لون کمپنی کو فون کیا اور اپنا وہ گھر جو میں نے بہت مشکل سے خریدا تھا گروی رکھ کر لون کمپنی سے 8 لاکھ یون نقد حاصل کر لیا۔ آخرکار وہ نادر ریئر وائرس اتنے سستے نہیں تھے، ہر ایک کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ اس دوران مجھے اچانک پچھلی زندگی کا وہ امیر شخص یاد آیا جس نے واٹر بیئر سیکرڈ باڈی بیدار کیا تھا۔ اس نے ایک نیلامی آکشن میں ایسی واٹر بیئر ٹارڈیگریڈ خریدا تھا جو ایک نادر وائرس کا حامل تھا، اور اتفاق سے وہ آکشن ہال یہیں قریب ہی تھا۔ میں فوراً ٹیکسی لے کر اس آکشن ہال پہنچ گیا، لیکن ریسپشن پر مجھے بتایا گیا کہ اندر داخل ہونے کے لیے کم از کم 10 لاکھ یون کے اساسات فنڈز دکھانا ضروری ہے۔ مجبوراً میں چپکے سے ایک کونے میں گیا اور آن لائن کئی پلیٹ فارم سے لاکھوں یون کا قرض آن لائن لون لے لیا۔ اگرچہ اس عمل میں کافی مشکلات اور الجھنیں تھیں، لیکن آخرکار میں آکشن ہال میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جہاں تک اس وائرس بردار واٹر بیئر کا تعلق تھا، ایک امیر شخص نے چند راؤنڈز تک میرے ساتھ بولی لگائی، مگر آخر میں نے اسے 10 لاکھ یون کی قیمت پر خرید ہی لیا۔ اپنے ہاتھ میں آنے والا واٹر بیئر ٹارڈیگریڈ کو دیکھ کر میرا دل جوش اور خوشی سے بھر گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ پچھلی زندگی میں جس شخص نے واٹر بیئر سیکرڈ باڈی کو بیدار کیا، اس کی روحانی قوت کو لافانی جسم امورٹل باڈی کہا جاتا تھا۔ نہ صرف اس کی دفاعی طاقت حد سے زیادہ تھی، بلکہ زخمی ہونے کے بعد بھی وہ بہت کم وقت میں تیزی سے صحت مند ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں خصوصیاتیں اپنے آپ میں اتنی طاقتور تھیں کہ اگر ان میں سے صرف ایک بھی حاصل ہو جاتی تو دشمن کے لیے قاتل وار ثابت ہوتی، لیکن صرف ایک واٹر بیئر سیکرڈ باڈی کافی
کافی نہیں تھی، مجھے مزید وائرس حاصل کرنے تھے۔ میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک میرا موبائل بج اٹھا۔ جب میں نے اسکرین دیکھی تو معلوم ہوا کہ فون میری گرل فرینڈ کن سیسی کا تھا۔ یہ نام دیکھتے ہی میرے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پچھلی زندگی میں کن سیسی کو کینسر تشخیص ہوا تھا۔ میں نے اس کی مدد کے لیے پیسہ بھی لگایا، محنت بھی کی اور ہر وقت اس کی خدمت اور دیکھ بھال کرتا رہا، لیکن کس نے سوچا تھا کہ جب موٹیشن کا دور شروع ہوگا تو کینسر کی وجہ سے اس کی طاقت آسمانی سطح تک بڑھ جائے گی۔ اسی دن اس نے مجھ سے بریک اپ کر لیا تھا۔ بعد میں بھی وہی تھی جس نے مجھے لیو گروپ کے مائن کان میں بھجوایا، جہاں میں سخت محنت کرتے کرتے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کن سیسی، پچھلی زندگی میں مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم اتنی سنگ دل اور زہریلی فطرت کی مالک ہو۔ جب موٹیشن کا دور شروع ہوگا تو اس حساب کا بدلہ میں ضرور لوں گا۔ فون بند کرنے کے بعد میں آکشن ہال سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک درمیانی عمر کے آدمی نے مجھے آواز دی۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام چینگ شوئی ہے اور وہ اس واٹر بیئر کا اصل فروخت کرنے والا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے آخر اتنی بڑی رقم خرچ کر کے اس واٹر بیئر کو کیوں خریدا ہے۔ یہ سن کر میں تھوڑا حیران ہوا اور فوراً ہوشیار ہو کر کہا، اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ چانگ شو مسکرایا اور بولا، فکر مت کرو، میں تم سے صرف تعاون کارپوریشن کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں بیریٹن میں ایک بایولوجیکل ریسرچ بیس میں کام کرتا ہوں اور میرے پاس کئی نادر اور قیمتی وائرس سیمپلز حاصل کرنے کے ذریعے ہیں۔ اگر تمہیں ان میں دلچسپی ہو تو، اگر تمہیں کچھ نادر وائرس سیمپلز چاہیے ہوں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ ہر سیمپل کی قیمت 50 لاکھ نہیں بلکہ 50,000 میٹن کے مقابلے میں 5 لاکھ ہے، گارنٹی کے ساتھ۔ کیسا رہے گا؟ یہ سنتے ہی میری نیندیں اڑ گئی، جیسے سوتے ہوئے کو تکیہ مل گیا ہو۔ مگر وائرس سیمپلز کی قیمت واقعی کم نہ تھی۔ چانگ شو نے جب دیکھا کہ میں خاموش ہو گیا ہوں تو اس نے سمجھا شاید قیمت زیادہ لگ رہی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ 30 لاکھ نہیں بلکہ 3 لاکھ میٹن کے مقابلے میں 3 لاکھ پر سیمپل بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ اس کی آخری قیمت ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے بیس میں کتنی قسم کے وائرسز ہیں؟ اس نے جواب دیا، تقریباً 100 سے زیادہ۔ میں نے کہا، ہر قسم کا ایک سیمپل چاہیے، دے سکتے ہو؟ اس نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس راستہ ہے، لیکن آدھی رقم ایڈوانس دینی ہوگی۔ میں نے فوراً مان لیا۔ ہم نے وی چیٹ ایکسچینج کر لی، لیکن اس کے جانے کے بعد میں پریشان ہو گیا۔ اتنے سارے وائرس سیمپلز خریدنے کے لیے مجھے کم از کم 30 ملین تیار کرنے پڑیں گے۔ اتنی بڑی رقم صرف قرض سے ہی لے کر حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ پچھلی بار جب میں مائن میں تھا، میں نے سنا تھا کہ کیلیو گروپ دیوانگی کی حد تک ٹینشن سنو لوٹس جمع کر رہا تھا اور پھر انہیں اکٹھا کر کے تباہ کر دیتا تھا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیان شان سنو لوٹس لیو ریون کے لیے خطرہ ہو؟ دوسرے الفاظ میں، موٹیشن کے موقع سے پہلے یہ ٹیان شان سنو لوٹس لیو ریون کی جینیٹک بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اگر یہ خبر سچ ہوئی تو 30 ملین کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اگر میں یہ معلومات لیو گروپ کو بھیج دوں تو پیسوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہی لیو ریون، پچھلی زندگی میں تمہارے لیو گروپ نے مجھے غلام بنا کر موت تک استعمال کیا تھا۔ اگر میں واقعی تمہیں ٹھیک کر دوں اور تمہارا نقصان کروا دوں، اتنی بڑی قسمت کا موقع، کیا تمہیں میرا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اگلے دن میں لیو کائلونگ کے آفس گیا۔ ویل چیئر پر بیٹھی لیو ریون کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا بے حد خوبصورت چہرہ اور نازک جسم اس پچھلی زندگی والی ڈیمون امپریس لیو ریون سے بالکل مختلف تھا۔ پچھلی زندگی میں ڈھونگائی سٹی کے اوپر اچانک ایک قیمتی خزانہ نازل ہوا تھا۔ بے شمار طاقتور لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے تھے، مگر آخر میں لیو ریون نے اپنے ڈیزاسٹر سینٹ باڈی کی طاقت سے سب کو شکست دی اور خون کی راہ بنا کر خزانہ حاصل کر لیا۔ خزانہ ملنے کے بعد اس نے بے رحمی سے ڈھونگائی سٹی کے تمام جاندار مخلوق کو قتل کر دیا اور ان کے دلوں کے خون سے اس خزانے کی قربانی دی۔ اسی وجہ سے اسے ڈیمون امپریس کا لقب ملا۔ اب اگر میں اس عورت کو ٹھیک کر دوں تو یہ بھی کسی حد تک لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانا ہی ہوگا۔ اس نے پہلے ہی میری معلومات نکلوا لی تھی۔ میں ایک بالکل عام آدمی تھا جس کا کوئی خاص پس منظر نہیں تھا۔ اگر یہ بات لیو ریون کی بیماری کے شروع میں ہوتی تو وہ ہرگز مجھے علاج کرنے کا موقع نہ دیتا، مگر اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اور وہ بس قسمت
आजमाने के लिए मुझे मौका देने पर मजबूर था। ठीक है, किस्मत आजमा लेते हैं। बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज कैसे करोगे? मिस्टर लियो, अगर मेरा तरीका वाकई आपकी बेटी की बीमारी पर असर कर गया तो एक 100 मिलियन का इनाम मुझे मिल जाएगा ना? बिल्कुल, पैसों की कमी नहीं, मुझे सिर्फ ये डर है कि तुम इस इनाम के मुस्तहिक हो ये या नहीं। तुम्हारी बेटी की बीमारी तियानशु स्नो लोटस के ठीक हो सकती है। तियानशान स्नो लोटस? और फिर बस सिर्फ तियानशान स्नो लोटस ही काफी है। लियू काइलोंग को कुछ हैरानगी हुई, लेकिन फिर भी उसने सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि एक डोज तैयार करके आजमाएं। दवा तैयार होने के दौरान मैंने गौर से देखना शुरू किया। मैंने सामने बैठी रियन डिमॉन इम्प्रेस को गौर से देखा। यकीन करना मुश्किल था कि पिछली जिंदगी की इतनी मशहूर डिमॉन इम्प्रेस जागने से पहले इतनी पुरसुकून और शरीफ नजर आती थी। लियू काइलोंग ने देखा कि मैं उसकी बेटी को बेझिझक देख रहा हूँ तो उसके दिल में गुस्सा पैदा हो गया। उसने सोचा, अगर तियानशु स्नो लोटस काम ना आई तो मैं तुम्हारी खैर नहीं। इसी दौरान सेक्रेटरी उबली हुई तियानशान स्नो लोटस लेकर आ गया। दवा पीने के बाद लियू रोयन का वो दाहिना हाथ जो पहले बिल्कुल बेहिस था हल्का सा हिलने लगा। ये देखकर लियू काइलोंग हैरान रह गया और खुशी से बोला, कमाल है, वाकई असर कर गया। मैंने कहा, मिस्टर लियो, जब मेरा तरीका काम कर गया है तो 100 मिलियन का इनाम। लियू काइलोंग ने जवाब दिया, फिक्र मत करो, जब मैं वादा करता हूँ तो उसे जरूर पूरा करता हूँ। चेयरमैन ने हुक्म दिया कि 100 मिलियन मिस्टर जाओ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। सेक्रेटरी ने जवाब दिया, जी चेयरमैन। साथ ही लियू रॉन ने भी दिल से शुक्रिया अदा किया, मगर मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया। जब मुस्तकबिल का तब्दीली आने का मौका आएगा तो शायद तुम लोग मुझे कत्ल करने का भी सोचोगे। इसी दौरान मेरे मोबाइल पर 100 मिलियन ट्रांसफर होने का पैगाम आया। अकाउंट बैलेंस देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ और काम में और वहाँ से रवाना हो गया। 1 घंटे बाद एक आलीशान होटल में मैंने 10 मिलियन की एडवांस रकम चांग शऊ के सामने रखी। उसके बाद मैंने उसका वर्क सर्टिफिकेट चेक किया और तस्दीक की कि वो वाकई ही लेबोरेटरी का कारकुन है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास 2 दिन हैं। 2 दिन बाद यही पैसे और माल का सीधा तबादला होगा। 100 किस्म के वायरस एक ही टेस्ट ट्यूब में रख दो। आखिर वायरस कोई मजाक की चीज नहीं। अगर मैंने उन्हें निगल लिया और तब्दीली का मौका आने से पहले ही मर गया तो नुकसान ही नुकसान होगा। चांग शऊ को ये बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने फौरन हाँ कर दी। उसके लिए बस पैसा मिलना जरूरी था। ग्राहक उस चीज को किस काम के लिए इस्तेमाल करेगा उससे उसे कोई मतलब नहीं था। चांग शऊ से रुखसत होने के बाद मेरा दिल जोश से भर गया। इन वायरसों के साथ जब तब्दीली का मौका आएगा तो कम से कम मैं एक ताकतवर शख्स बन सकूंगा। लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं था, क्योंकि पिछली जिंदगी में लियू रियन जैसे ताकतवर लोगों की कमी नहीं थी। मेरे पास जो 100 से ज्यादा वायरस थे वो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए काफी नहीं थे। अब जब मैं दोबारा जिंदा हुआ हूँ तो ये तो कुछ ना करूँ, और अगर करूँ तो सबसे ताकतवर बनूं, वरना इतना बेहतरीन मौका जाया हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि थोड़ा न्यूक्लियर वेस्ट वाटर भी हासिल करूं। वो निहायत जहरीला होता है और शायद कोई खास असर दिखा दे। 2 दिन जल्द ही गुजर गए। इन दिनों मैंने कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जमा किए और ऑनलाइन महंगी कीमत पर 1 बॉटल न्यूक्लियर वेस्ट वाटर भी खरीद ली। अब मुझे सिर्फ उन 100 वायरसों का इंतजार था। इसी दौरान चांग शऊ का फोन आ गया। 2 घंटे बाद वो वादे के मुताबिक उसी होटल में मौजूद था और एहतियात से अपनी जेब से कुछ निकालने लगा। एक डब्बा था। तुम्हारी दरख्वास्त के मुताबिक मैंने तुम्हारे रिसर्च बेस के 105 मुतगय्यर वायरसेस उसमें रख दिए हैं। इस USB में एक तमाम वायरसों की तफसील मालूमात मौजूद है। बस यही एक कॉपी है, इसे संभाल कर रखना। अगर खो गए तो मेरे पास दोबारा हासिल करने का कोई जरिया नहीं होगा। मैंने USB की तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि डब्बे के अंदर रखी टेस्ट ट्यूब को गौर से देखने लगा। उसमें हल्की नीली रंगत का माया था जो जाहिरी तौर पर बेजरर लग रहा था, लेकिन असल में उसका एक कतरा भी किसी को बुलंद मकाम तक पहुंचा सकता था। चांग शऊ ने देखा कि मैं काफी देर से टेस्ट ट्यूब को देख रहा हूँ और कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो उसने हल्की सी खांसी करके कहा, देखो पहले ही वाज़ेह कर देता हूँ, तमाम वायरसों को एक जगह मिलने का ख्याल तुम्हारा था। एक ही जगह रखा था जब
तुम इसे वापस ले जाओगे तो मैं इस बात की जमानत नहीं दे सकता कि अंदर मौजूद वायरस अपनी असल हालत में रहेंगे या नहीं। मैंने उसकी शिकायतों पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि एहतियात से डब्बे को दोबारा बंद कर दिया। फिर सिर्फ इतना कहा कि सौदा मुकम्मल हो गया और जल्दी से कमरे से निकल गया। मेरे जाने के बाद चांग शाओ को एहसास हुआ कि यूएसबी अभी भी मेज पर पड़ी है। वो कुछ हैरान हुआ, लेकिन क्योंकि उसे पैसे मिल चुके थे इसलिए उसने मजीद मुदाखलत करना मुनासिब न समझा और पैसे लेकर होटल से चला गया। इस तरह चंद दिन आराम से गुजर गए। इन दिनों मैंने बची हुई करोड़ों की रकम मुख्तलिफ असल दर्जे के मुकामात पर खर्च कर दी और खूब ऐशो आराम किए। बेशक सबसे अहम वायरस भी मैंने काफी जमा कर लिए थे। इस वक्त मेरा स्टोरेज कैबिनेट पूरी तरह भरा हुआ था। जब मैं ये सोच रहा था कि क्या मजीद जहरीली चीजें जैसे सांप और बिच्छू वगैरह हासिल करूं, अचानक टीवी पर एक खबर फ्लैश हुई। एक हंगामी खबर के मुताबिक 10 मिनट पहले बैरटिन का मशहूर टोंगमैन ब्रिज अचानक गिर गया, जबकि हालात और जख्मियों की तादाद भी अभी मालूम नहीं। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन फिर भी पुल को पहचाना जा सकता था। जो पुल पहले निहायत शानदार और अजीम नजर आ रहा था, अब बीच से टूट चुका था, गोया किसी ने उसे जोर से लात मारकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया हो। ये मंजर देखते ही मैं होशियार हो गया। तब्दीलियों का दौर वाकई शुरू होने वाला था। हजारों मीटर लंबा टोंगमैन ब्रिज इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी तेज धार तलवार ने उसे बीच से 2 हिस्सों में काट दिया हो। ये मंजर देखकर मैं फौरन समझ गया, ये तब्दीली के दौर के आने की निशानी थी। पिछली जिंदगी में टोंगमैन ब्रिज असल में मुतगय्यर जानवर रेड टेल्ड वाइल्ड स्कॉर्पियन ने काटा था। क्योंकि उस वक्त तब्दीली का दौर पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था, इसलिए जब वो पहली बार जाहिर हुआ तो उसकी ताकत सिर्फ दूसरे मरहले की हद तक थी। इस वजह से बाद में ब्रिटिश फौज उसे भारी हथियारों से मारने में कामयाब हो गई। लेकिन इसके बावजूद रेड टेल्ड वाइल्ड स्कॉर्पियन के इस आर्म ने बैरटन में 50,000 अफराद की जान ले ली या उन्हें जख्मी कर दिया। मालूमात बहुत तेजी से फैल गईं और रेड टेल्ड वाइल्ड स्कॉर्पियन की पैदा करदा तबाही इतनी बड़ी थी कि उसे छुपाना नामुमकिन था। सिर्फ 2 दिनों में उसके ब्रिटिश फौज के साथ जंग की तस्वीरें और वीडियोस लीक हो गईं, जिससे पूरी दुनिया खौफ का शिकार हो गई। ये सोचकर मेरा दिल जोश से भर गया। लगता है मेरी तैयारी बेकार नहीं गई। इस जिंदगी में मैं अपनी पिछली जिंदगी की कमजोरी को पूरी तरह बदल दूंगा और इस दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बनूंगा। एक हफ्ते बाद एक अजीब लहर ने पूरी दुनिया को ढक लिया। इस वक्त हर शख्स के जहन में एक आवाज गूंजी, म्यूटेशन एरा शुरू होने वाला है। तमाम इंसान तरक्की याफ्ता होंगे। जिसके जिस्म में बीमारियां ज्यादा होंगी उसकी तरक्की का दर्जा उतना ही बुलंद होगा। अपने सामने जाहिर होने वाले काउंटडाउन को देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरा दौर आखिरकार आ पहुंचा है। म्यूटेशन एरा जल्द शुरू होने वाला है। क्या तुमने भी वो आवाज सुनी जो कह रही थी कि म्यूटेशन एरा आने वाला है? अरे तो फिर सिर्फ मैंने ही नहीं सुनी, मुझे लगा था मुझे वहम हुआ है। क्या ये कोई मजाक है? तमाम इंसान इवॉल्व करेंगे क्या वाकई? यहाँ लिखा है कि जिसकी बीमारी जितनी ज्यादा होगी उसकी इवोल्यूशन उतनी ही बुलंद होगी। तो फिर मुझे कल ही आखिरी मरहले का फेफड़ों के कैंसर के डायग्नोस हुआ है। क्या अब मेरी जान बच सकती है? अरे भाई, ये बचने की बात नहीं, तुम तो सीधा आसमान पर जाने वाले हो। इंटरनेट पर इस खबर के बाद बहस का तूफान आ गया, लेकिन मैंने किसी की बात पर तवज्जो न दी और अपने पहले से जमा किए हुए वायरस निकल लिए। मैंने तमाम वायरस निकाल लिए। जब मैं ये सोच रहा था कि सबसे पहले कौन सी बोतल इस्तेमाल करूं, अचानक मेरा फोन बज उठा। हेलो जोइलियो, क्या तुमने भी सुना? म्यूटेशन एरा अब शुरू होने वाला है। लगता है आसमान ने मुझ पर रहम कर दिया। मेरा नाम किनसीसी है और मेरी किस्मत में अभी मौत नहीं लिखी। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? अगर उस वक्त तुम अपना किडनी मुझे देने से इनकार न करते तो शायद मुझे ये मौका भी ना मिलता। सीसी, क्या हम मिल सकते हैं? जाओ लो, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। म्यूटेशन एरा के शुरू होने वाले दिन मेरे घर आ जाना। मैं देखूंगी कि तुम कितने दिल से माफी मांगते हो, फिर फैसला करूंगी कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। कॉल बंद करने के बाद मैं भी इख्तियार ठंडी तंजियां हंसने लगा। किनसीसी, उस वक्त तुम्हें पता चल जाएगा कि असल में वो
कौन है जिसकी तरफ लोग हसरत से देखते हैं। किनसीसी की बे इंतहा खुशी के मुकाबले में इस वक्त लियू रियोन बहुत ज्यादा गुस्से में बेचैन हो रही थी। लानत, ये अचानक बीमारियों का दौर कैसे आ गया? अब मेरी बीमारी 40% ठीक हो चुकी है, क्या इससे मेरी ताकत बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाएगी? सब उस जाओ लौ की गलती है, मैं उसे जरूर मार डालूंगी। बेटी परेशान मत हो जाओ लौ, ये बंदा सिर्फ एक सेहतमंद आम इंसान है। जब बीमारियों का दौर शुरू हो जाएगा तो हमारे पास उससे निपटने के बहुत तरीके होंगे। दूसरी तरफ मैं मेज पर रखे हुए वायरसेस को देखकर कुछ देर के लिए सोचों में गुम हो गया। 1 महीने के दौरान अब वायरस पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक मुतगय्यर हो चुके थे। असल टेस्ट ट्यूब के अंदर जो नीली लिक्विड थी अब वो पूरी तरह काली हो चुकी है और इस काली लिक्विड के अंदर धुंधला सा नजर आ रहा था कि जैसे कुछ चीजें लगातार हिल रही हो। बेशक सिर्फ इन 100 मुतगय्यर वायरसेस के अलावा मैंने छोटी बड़ी कई किस्म की जहरीली चीजें भी जमा की हुई थी, लेकिन ये सब चीजें पहले आपस में मिक्स करने की जरूरत थी, वरना एक एक करके लेने से मैं शायद 2.5 मिनट भी जिंदा न रह पाऊं। वक्त गुजरते गुजरते जल्दी ही बीमारियों के दौर का काउंटडाउन आखिरी 1 मिनट तक पहुंच गया। ये देखकर मैंने जल्दी से वो 100 वायरस मिला हुआ सब्सटेंस उठा लिया, बॉटल का ढक्कन खोलकर एक ही सांस में उसे पी लिया। जैसे ही वो काली लिक्विड मेरे जिस्म में गई तो गले से एक तेज जला देने वाली जलन सी महसूस हुई, तो फौरन ही गले से ऊपर उठने लगी। इसके फौरन बाद ये जलन का एहसास थोड़ी देर में मेरे पूरे जिस्म में फैल गया। ये शदीद दर्द मुझे लगभग बेहोश कर देने वाला था, लेकिन मैं जानता था कि ये सबसे अहम वक्त है। अगर मैं बेहोश हो जाता हूँ तो सारी मेहनत जाया हो जाती। फिर मैंने जबरदस्ती इस शदीद दर्द को बर्दाश्त किया और दोबारा उस बोतल को पकड़ लिया जो पहले ही अच्छी तरह मिक्स हो चुकी थी और एक ही सांस में उस बोतल का सारा मिक्सचर पी गया। एक लम्हे में ही एक नाकाबिले बयान दर्द मेरे पूरे जिस्म में फैल गया। मेरा चेहरा फौरन ही लाल और नीला हो गया। मेरे जिस्म पर बारीक बारीक नसें उभर आईं और मेरे पूरे जिस्म से जैसे जहन्नुम से निकला हुआ एक शैतान लगने लगा। और इस तरह मुश्किल से 1 मिनट गुजरने के बाद बीमारियों का दौर आखिरकार शुरू हो गया। गिनती खत्म होती है। एक नीली एनर्जी पूरी जमीन ब्लू प्लैनेट पर फैल गई। जिन लोगों को पहले से बीमारियां थीं, वो इस लम्हे पूरी तरह ठीक हो गए और उन्हें मुख्तलिफ दर्जों में ताकत भी मिल गई। मिसाल के तौर पर जिल्द की बीमारियों में मुब्तला लोग इस वक्त हड्डियों और आग से भी महफूज हो गए और पाँव से भी महरूम लोग जब उन्हें ताकत मिली तो उन्होंने ऊंची इमारतों के दरमियान आसानी से इधर उधर छलांगे लगाना शुरू कर दी और इस वक्त मैं दर्द से आजाद हो चुका था। फिर एक सुनहरी गोल्डन एनर्जी ने मेरे पूरे जिस्म को घेर लिया। बेशुमार वायरस के टैग्स मेरी आंखों के सामने चमकने लगे और हर वायरस मुझे एक जबरदस्त सलाहियत एबिलिटी देता था। जब मैं इन सलाहियतों पर हैरान था तो वार्निंग आवाज दोबारा आ गई। शख्सियत इंडिविजुअल में मनफी हालत की तादाद 138 तक डिटेक्ट हुई। बीमारियों का जाल मुकम्मल हुआ। मुबारक हो, आपको वाहिद यूनिक टैलेंट मिला, 9 नेदर चोज बॉडी। ये देखकर मैं फौरन बैठकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मैं इब्तिदाई लेवल 1 से बढ़कर रोशनी तब्दीली के लेवल 6 तक पहुंच गया और अपने अंदर इस खौफनाक ताकत को महसूस करते हुए मैं अंदर ही अंदर बहुत जज्बाती था। फिर मैं छत पर गया, सामने शहर की चमकती हुई आबादी को देखते हुए मैं बेख्तियार कह उठा, इस जिंदगी में अब वो कमजोर बकरा नहीं रहा जो दूसरों के हाथों जिबा होता था। ये जानकर कि पहली जिंदगी में किनसीसी जो पहली दफा जागी थी तो सिर्फ इनिशियल लेवल 3 पर थी, अब मेरी लिंगबियन रियलम लेवल 6 की ताकत के साथ अंदाजा है कि पूरी ब्लू स्टार पर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इसी वक्त जमीन से अचानक एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। फिर थोड़ी दूर से एक धमाके की आवाज आई। ये मंजर देखकर मुझे अचानक याद आया कि पहली जिंदगी में भी इसी वक्त जियानगान शहर के आसमान पर एक लिंगबन रियलम लेवल 1 का सिल्वर आर्मर वाला ब्लैक ड्रैगन, सिल्वर आर्म्ड मिस्टीरियस फ्लड ड्रैगन आया था। वही है सिल्वर आर्म्ड मिस्टीरियस ड्रैगन। मुझे याद है पहली जिंदगी में जब इसे मारा गया था तो इसका ड्रैगन बॉडी एक सिल्वर स्पीयर में तब्दील हो गया था। बहुत ज्यादा ताकतवर, बिल्कुल सही वक्त पर मुझे एक हथियार की जरूरत थी तो तुम ही सही। दूसरी तरफ इस वक्त सिल्वर आर्मर जॉन जियाओ के नीचे बहुत ज्यादा पुलिस
जमा हो चुकी थी, लेकिन उनके मॉडर्न हथियार उसके सामने बिल्कुल ऐसे थे जैसे सिर्फ खुजली कर रहे हों। ना तो उसे कोई नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि उल्टा उसे और ज्यादा गुस्से में ला दिया गया हो। जब सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है, तो उनमें से एक ने आसमान की तरफ इशारा करके कहा, देखो यही है। इस अहम वक्त पर मैं वक्त पर वहाँ पहुँच गया था। सिल्वर आर्मर जुआन जाओ ने मुझे देखकर उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। फिर उसने एक बिजली का गोला लाइटनिंग बॉल उगला जो मेरी तरफ आया और मैं उस गोले को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रहा था। मैंने अपने दोनों हाथ पीछे कर रखे थे और बिल्कुल भी बचने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही वो बिजली का गोला मुझे लगा तो जबरदस्त बिजली की ताकत एक लम्हे में फट गई और आसपास का इलाका फौरन ही एक तबाहकुन बिजली के मैदान में तब्दील हो गया। सिल्वर आर्मर जुआन जियाओ ने ये मंजर देखकर उसकी आंखों में तसल्ली की झलक आई, लेकिन जब उसने समझा कि मैं मर चुका हूँ तो मैंने कहा, तुम्हारी बिजली मुझे नुकसान नहीं दे सकती। मुझे बिल्कुल ठीक देखकर जब मैं उसके सामने वापस गया तो सिल्वर आर्मर जुआन जियाओ सख्ते में आ गया। फिर मैंने कहा, यहाँ रहकर मेरा हथियार बन जाओ। ये कहकर मैंने फौरन अपनी रूहानी ताकत जमा की और उस पर एक हमला किया। अगले ही लम्हे एक इतना बड़ा हाथ का निशान पाम स्प्रिंट जाहिर हुआ जो लगभग सिल्वर आर्मर जुआन जाओ के बराबर था और बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ गया। वो जोर से सिल्वर आर्मर जुआन जाओ की जिस्म पर जा लगी। सिल्वर आर्मर जुआन जाओ सीधा इस एक हमले से जमीन की तरफ पटक दिया गया। उसका बहुत बड़ा जिस्म जोर से ग्राउंड पर गिर गया। एक गहरा खड्डा बन गया। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद सब लोग दंग रह गए। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इंसान इतनी ताकत कैसे रख सकता है। इसी वक्त खड्डे के अंदर सिल्वर आर्मर जुआन जो अभी भी उठकर मुकाबला करना चाहता था, लेकिन मैं उसे मौका कैसे देता। मैं सीधा उसके ऊपर चला गया और जोर से उसके 3 इंच वाले नुक्ते को पकड़ लिया। मेरी ताकत लगाते ही थोड़ी ही देर में सिल्वर आर्मर जुआन जो एक लंबे नेज़े स्पीयर में तब्दील हो गया। हथियार मिलने के बाद मैं वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ आ गया। अब मुझे जल्दी से इस सिल्वर आर्मर स्पीयर को रिफाइन करना था, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद जियानगन शहर में नानशान सेक्रेट रियलम खुलने वाला था। मुझे याद है कि पहली जिंदगी में नानशान सेक्रेट रियलम में बेशुमार खजाने पैदा हुए थे और उनमें सबसे कीमती चीज 9 योंग 8 ट्राइग्राम्स प्लेट जोयंग बगुआ पैन थी। पहली जिंदगी में जिसने 9 योंग 8 ट्राइग्राम्स प्लेट हासिल की, लोग उसे गोजिया टियानजुन के नाम से जानते थे। इस चीज को हासिल करने से पहले वो सिर्फ इनिशियल रियलम के एक नए सीखने वाला रॉकी था, लेकिन जब उसने ये सबसे ज्यादा डिफेंसिव खजाना हासिल किया तो उसकी ताकत फौरन बढ़ गई थी। 9 योंग 8 ट्राइग्राम्स प्लेट की मदद से एक इंसान ने 5 तबो लेवल की बीस्ट किंग्स का मिलकर हमला भी रोक लिया था, और जब ये अपॉर्चुनिटी मुकद्दर का मौका शुरू हुआ तो तकदीर की कुदरत ने 5 बेड्स कल्टीवेशन रियलम्स मुकर्रर कर दिए, जो ये हैं इनिशियल रियलम, स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम, डिवाइन मिस्ट्री रियलम, स्पिरिट फ्यूजन रियलम, टाबो रियलम। मुझे लाजमी तौर पर अपनी ताकत जल्दी बढ़ानी थी और 9 योंग 8 ट्राइग्राम्स प्लेट हासिल करनी थी। जब मैंने अपनी रोशनी ताकत सिल्वर आर्मर स्पीयर में डाली तो स्पीयर के अंदर मौजूद सिल्वर आर्मर जुआन जियो के बाकी बची हुई सोच फौरन ही खत्म हो गई। जल्दी ही ये सिल्वर आर्मर स्पीयर मेरे जरिए रिफाइन हो गया। फिर मैंने उस सिल्वर आर्मर स्पीयर को अपनी आस्तीन में छुपा लिया और खिड़की से छलांग लगा दी और थोड़ी ही देर में मैं किनसीसी के घर पहुंच गया। और जब किनसीसी ने मुझे आते देखा तो वो बहुत हैरान हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं सच में आ जाऊंगा। फिर उसने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि मैंने सिर्फ हल्का सा हाथ उठाया और उसका हमला रोक दिया। ये देखकर किनसीसी फौरन शॉक हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास अभी भी मुकाबला करने की ताकत है। किनसीसी, क्या तुम ये समझती हो कि तुम इनिशियली रियलम की ताकत बहुत ज्यादा हो? स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम नामुमकिन। ये नामुमकिन नहीं। तुम स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम कैसे हो सकते हो? तुम कैसे अवेकनर हो सकते हो? मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की, बल्कि सीधा ड्रैगन आर्मर स्पीयर लॉन्ग जिया गन को सुमून किया और एक ही वार में उसके सीने को पार कर दिया। इस दौरान दूसरी तरफ लियू रियोन हालांकि मेरे जरिए काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसमें डिजास्टर ईवल सैक्रेड
बॉडी जाई शेंग टी अवेकन हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी ताकत पहली जिंदगी के मुकाबले में 10वां हिस्सा भी नहीं थी। मगर डिजास्टर ईवल सैक्रेड बॉडी वैसे भी एक टॉप लेवल टैलेंट था। हालांकि उसकी ट्रेनिंग की स्पीड बहुत कम हो गई थी, फिर भी उसे एक डेड और जिंदा करने वाली एबिलिटी मिली। लेकिन अफसोस ये स्किल इनकम्प्लीट, एक दफा यूज करने के बाद ये पूरी तरह खत्म हो जाती थी। लानत हो ज़ाओ लौ पर, अगर वो ना होता तो मेरा डिजास्टर ईवल सैक्रेड बॉडी इस तरह इनकम्प्लीट कैसे होता। वालिद, फादर, क्या ज़ाओ लौ मिल गया? हमारे आदमी उसके पुराने घर तक नहीं पहुंच सके, लेकिन वो घर पहले ही उसने मॉर्टेगेज पर रख दिया था। अब वो जियानगन शहर में है भी या नहीं, ये भी एक सवाल है। कैसे मुमकिन है? क्या उसे पहले ही पता था कि म्यूटेशन एरा बीमारियों का दौर आने वाला है? मैं जरूर उसे पकड़ूंगा और उसे अपनी पैदाइश पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। इसी वक्त एक मुलाजिम दौड़ता हुआ आया और बोला, हमने ज़ाओ लौ को ढूंढ लिया है। और फिर कंप्यूटर खोल दिया। एक वीडियो चलाई गई जिसमें मैं सिर्फ हाथ उठाता हूँ और एक बहुत बड़ा हाथ का निशान पाम प्रिंट हवा में जाहिर होता है, जो जोर से एक ड्रैगन के जिस्म पर लगता है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर ड्रैगन था, लेकिन सिर्फ उस एक हमले से सीधा जमीन के अंदर दब गया। ये मंजर देखकर लियू रियॉन बहुत हैरान हो गई और लियू काइलोंग ने भी चीख कर कहा, ये तो ज़ाओ लौ है, कैसे मुमकिन है? ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? लानत हो, ये बंदा जरूर कुछ जानता था, वरना एक आम इंसान अचानक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? डॉटर, प्लान बदलना पड़ेगा, हमें उसे खुश करना होगा, फिर मौका देखकर काम करना होगा। लियू काइलोंग ने कहा कि हमने उसे एक पहले मौका दिया था और फिर भी वो काफी एक्साइटेड था। ये बात सुनकर लियू रियॉन का थोड़ा नापसंदीदगी महसूस हुई, लेकिन इस वक्त वाकई कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार उन्होंने इस बात पर रजामंदी दे दी और कहा कि ज़ाओ लौ का कांटेक्ट ढूंढ कर दो, मैं खुद जाकर उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। दूसरे दिन मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो मेरे फोन पर एक कॉल आई। जब चेक किया तो पता चला ये लियू ग्रुप की कॉल थी। मैं हूँ ज़ाओ लौ, क्या बात है? बहुत अच्छा, क्या ये सच में मिस्टर ज़ाओ हैं? मैं लियू काइलोंग हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा था और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि आपने मेरी बेटी का इलाज किया। आखिरकार मैं आप तक पहुँच ही गया। मिस्टर लियू, तो आप मुझे किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? आपका हमारे लियू ग्रुप पर बहुत बड़ा एहसान है, ये सब फोन पर नहीं हो सकता। मिस्टर ज़ाओ, ऐसा करते हैं, आप मुझे अपना एड्रेस बता दें, मैं अपनी बेटी के साथ खुद आपसे मिलने आ जाता हूँ। ये सुनकर मैं फौरन हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू काइलोंग खुद मुझसे कांटेक्ट करेगा। फिर मैंने अपने अपार्टमेंट का एड्रेस उसे भेज दिया। जब तुम लोग इतनी जल्दी खुद आना चाहते हो तो मैं भी कोई नरमी नहीं करूँगा। मेरी सोच सही निकली। ज़ाओ लौ वाकई हमारी लियू ग्रुप के लिए दिलचस्पी रखता है और उसके लिए ये एक एहसान जैसा मामला है। चलो बेटी, हम इस ज़ाओ लौ से मिलने चलते हैं और याद रखना, उसके सामने अपनी नफरत जाहिर मत करना। सब कुछ तब तक के लिए रोकना जब तक तुम्हारी ताकत बढ़ न जाए, फिर हम बदला लेंगे। वालिद, मुझे पूरा कंट्रोल है। मैं यकीन दिलाती हूँ कि ज़ाओ लौ को शक भी नहीं होगा। ठीक है, देर नहीं करनी, चलो अभी निकलते हैं। जल्द ही लियू काइलोंग और उसकी बेटी मेरे भेजे हुए एड्रेस के मुताबिक वहाँ पहुँच गए। मिस्टर ज़ाओ, मैं लियू काइलोंग हूँ। मैं अपनी बेटी लियू रियॉन के साथ आपसे मिलने आया हूँ। मिस्टर ज़ाओ, आपने आखिर दरवाजा खोल दिया। लियू चेयरमैन, आपने शायद देख लिया होगा कि मैंने यागोयांग प्राइमरी स्कूल में उस सिल्वर आर्मर जुआन जियाओ को मार दिया था, इसलिए आप यहाँ आए हैं। मिस्टर ज़ाओ, आपका ड्रैगन को मारने वाला मंजर अब इंटरनेट पर हर जगह फैल चुका है। वाकई एक जवान हीरो, बहुत शानदार और पुरजोश। मिस्टर ज़ाओ, आपने लियू रियॉन की जान बचाई थी। पिछले कुछ दिनों से रियॉन लगातार सोच रही थी कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करे, लेकिन रियॉन जितना भी सोचती रही वो कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रही थी। इसलिए सोचा कि आपसे सामने आकर मशवरा कर लें। बताएं, रियॉन आपका शुक्रिया कैसे अदा करे? रियॉन जरूर अपनी पूरी कोशिश करेगी। वाकई रियॉन कितनी चालाक और मकसद के लिए हर हद तक जाने वाली है। अगर मैं री इनकारनेशन वाला ना होता तो मैं भी रियॉन की इस अदा पर धोखा खा जाता। जब शुक्रिया की बात आई तो एक काम है जो मैं चाहता हूँ कि तुम करो। कैसे काम? रियॉन जरूर पूरा करेगी। अगर तुम इतनी मुखलिस हो तो मैं सीधा कह देता हूँ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। ये कहते ही मैंने सिल्वर आर्मर स्पीयर सुमून की और लियू रियॉन
रियॉन की हैरत बड़े चेहरे के सामने एक ही वार में उन दोनों बाप बेटी को खत्म कर दिया। लियू रियॉन, पिछले एक जिंदगी में तुम दोनों बाप बेटी ने न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जान ले चुके थे। अब ये कहना ठीक होगा कि मैंने तुमसे निजात दिला दी है। लियू फैमिली को खत्म करने के बाद मैं वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गया। अभी म्यूटेशन एरा बीमारियों का दौर बस शुरू ही हुआ था। बहुत से लोग अभी एक्सप्लोरेशन के मरहले में थे। मुझे इसी वक्त के अंदर जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ानी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे जाने के कुछ देर बाद जो लियू रियॉन पहले ही बेहोश हो चुकी थी, उसके जिस्म में अचानक एक काली रोशनी चमक उठी। थोड़ी देर बाद उसके जख्म पूरी तरह ठीक हो गए और लियू रियॉन ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। सबसे पहले उसकी नजर उसके पास पड़े हुए लियू काइलोंग की लाश पर पड़ी। ये मंजर देखकर लियू रियॉन बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अंजाम इतना बुरा होगा। ज़ोलो, मैं लियू रियॉन तुमसे हमेशा के लिए दुश्मनी रखूंगी। एक हफ्ते बाद मेरे लगातार मेहनत के बाद मेरी कल्टीवेशन लेवल आखिरकार लिंगबियन रियलम के लेवल 6 से बढ़कर 7 पर पहुंच गई। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मेरी ट्रेनिंग की स्पीड बहुत स्लो है। हालांकि मेरा 9 नेदर चोज बॉडी रूहानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था, मगर अभी भी मुझे एक अच्छी ब्रीथिंग टेक्निक की जरूरत थी जो इसे बेहतर तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सके। जब मैं बाहर निकलकर इधर उधर घूमने का सोच रहा था तो आसमान के बादलों में अचानक एक बहुत बड़ी दरार क्रैक पैदा हो गया और उस दरार से बेशुमार सुनहरी रोशनी निकलकर नीचे गिरने लगी। और जहाँ ये रोशनी गिर रही थी वो जगह जिंगनान शहर के क्रीनान माउंटेन था। ये देखकर मैं फौरन चौंक गया। ये तो सीक्रेट रियलम खुलने वाला है। फिर मैंने जल्दी से अपने मोबाइल पर ताज़ा खबरें चेक की। जब देखा कि सब कुछ पहली जिंदगी जैसा ही है तो मैं हल्की सी मुस्कुराहट से मुस्कुरा दिया। लगता है मेरी री इनकार्निनेशन ने दुनिया के निजाम को नहीं बदला। मेरी पहली जिंदगी की यादों के मुताबिक अब भी इस दिशा के अंदर 5 बड़ी ताकतवर जमायतें फैक्शंस मौजूद हैं, जिनमें ब्लैक फीदर किंग की सरपरस्ती में बैली ग्रुप, 5 ऑर्गन्स इमोर्टल बॉडी गू किन्हाओ की सरपरस्ती में ऑडो स्टोरी फिल्मी और स्कुल वेनरेबल योंग टियानयिंग की स्कुल सोसाइटी और सरकारी तौर पर बनाया गया दशा एलियंस। सिर्फ एक फर्क ये है कि लियू ग्रुप अब नहीं है, लेकिन उसकी जगह एक नया ग्रुप आ गया है जो पहले लियू ग्रुप के अंदर था, जिनग्लैन माउंटेन विला। लेकिन अभी की सूरत हाल के मुताबिक मेरी ताकत अब भी दाशा में नंबर 1 थी, या ये कहूँ कि पूरी ब्लू स्टार पर सबसे ज्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। फिर मैं किनान माउंटेन के नीचे पहुँच गया, लेकिन मुझे हैरत हुई कि यहाँ पहले से ही बहुत बड़ा मजमा जमा था और मैं सोच ही रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तो इसी दौरान अचानक एक बड़ा हुजूम जोशो खरोश के साथ वहाँ आ गया और उन सब की लीड करने वाली बैली ग्रुप की लू योरर। देखो, शायद ये ब्लैक फीदर किंग की बहन है, लू योरर। हाँ वही है। सुना है एक ब्लैक फीदर किंग की बीमारी उसके खानदान में विरासत हेरिडिटरी है और उसकी बहन की हालत हालांकि उससे कम है, मगर फिर भी उसके पास लगभग 60% ताकत है। पहली जिंदगी ने नानशान सीक्रेट रियलम में शायद बेली ग्रुप को कोई जिक्र ही नहीं था। लगता है लियू ग्रुप के गिरने की वजह से वाकई दुनिया के निजाम टाइमलाइन में कुछ तब्दीली आ गई है। इसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि आसपास के लोग सब अलग होकर हट गए हैं। असल में बेली ग्रुप के लोग मेरी तरफ आ रहे हैं और उनमें से एक मुलाजिम जब उसने मुझे रास्ते में खड़ा देखा तो फौरन आगे बढ़कर मुझे सबक सिखाने लगा, लेकिन पास ही खड़ी लियू योर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ये मंजर देखकर आसपास खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। ये लड़का क्या कर रहा है? देखो तो सही, बैली ग्रुप आ रहा है, फिर भी उनके सामने खड़ा है। बैली ग्रुप के रास्ता रोकने की हिम्मत? ये लड़का तो गया काम से। साहब, ये किस फैक्शन से है? बस अकेला ही है। मैं समझा था कि इसका कोई बड़ा बैकग्राउंड होगा, मगर ये तो बिल्कुल मामूली सा निकला। बैली ग्रुप को ऑफेंड कर ये लड़का अब खत्म समझो। लेकिन लू योर ने उस पर हमला नहीं किया, सिर्फ हाथ हिलाकर इशारा किया और फिर दूसरी तरफ चल पड़ी। उस तरफ चल गई। ये रवैया देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। लू योर ने मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मैं जाने लगा तो आसमान से अचानक एक शख्स नीचे आया और वूश की आवाज के साथ लू योर के पास लैंड किया। ये जिंगनान माउंटेन विला का तीसरा शहजादा रुआन यानफिंग था। लगता है जिनगैन माउंटेन विला के लोग भी आ गए हैं। योर
बहन, आज तुम अकेली क्यों आई हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? मेरा भाई किसी जरूरी काम में बिजी है, इसीलिए मैं अकेली आई हूँ। ठीक है, हमारी तरफ से भी सिर्फ मैं ही किनान माउंटेन की सिचुएशन चेक करने आया हूँ। इस तरह हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। यार बहन, मैंने अभी जो हुआ वो सब देख लिया। ये बंदा तुम्हारा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता है? चलो मैं जाकर इसे सबक सिखा देता हूँ। आने से पहले मेरे भाई ने मुझे वार्न किया था कि बेहतर है कि मसला बढ़ाने से बच जाओ। इस मामले में तुम बीच में मत पड़ो। टेंशन मत लो यार बहन, मैं कल ही इनिशियल रियलम के लेवल 6 तक ब्रेक थ्रो कर चुका हूँ। मेरी ताकत हालांकि तुम्हारे भाई से कम है, लेकिन एक मामूली से लड़के को सबक सिखाना मेरे लिए तो कोई मसला नहीं। मैं समझा था कि थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ एक और बकवास आदमी आ गया। अब जब जिंगमैन माउंटेन विला का ये रुआन शहजादा खुद मौत मांग रहा है, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसे खत्म करने में। बाद में मैं जिंगमैन माउंटेन विला को भी मिटा दूंगा, तब पूरी दुनिया के टाइमलाइन पहले जैसे हो जाएंगे। मैं सच में एक जीनियस हूँ। मैं खुद को क्या कमाल समझता हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर जीना चाहते हो तो अभी जाकर मेरी यार बहन के सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांग लो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं अभी तुम्हें यहीं मार डालने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। अब तो मजा आने वाला है। अभी तक जो बिल्कुल चुप खड़ा था और बेली ग्रुप को रास्ता नहीं दे रहा था, अब देखो घुटनों पर नहीं झुकेगा तो मारने के लिए तैयार हो जाओ। देखें अब ये कितना अकड़ता है। रॉन येफिंग आसपास के लोगों की बातें सुनकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे यही असर चाहिए था। अब जब मोटेशन एरा का मौका आ चुका था, उन्होंने नैनशैन विला को जिनगैन शहर की सबसे ताकतवर फोर्स बना दिया था और जरूरी था कि वो अपनी ढोंस जमाए। लेकिन वो अभी कुछ करता उससे पहले ही मैंने सिल्वर आर्मर स्पेयर सुमून की और एक ही वार में उसे पूरी तरह पार कर दिया। ये मंजर देखकर आसपास के लोग दंग रह गए और लू यॉर भी बहुत ज्यादा हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ताकत इतनी ज्यादा होगी। वो इनिशियल रियलम लेवल 7 पर थी, लेकिन फिर भी ये नहीं देख सकती कि मैंने अटैक कैसे किया। ये आदमी असल में है कौन? अब जब वो मक्खियों से छुटकारा मिल गया, मैं अकेला चलकर एक एक पुरसकून कोने में जा बैठ गया। इसी वक्त लू यॉर अचानक मेरी तरफ आई। मिस्टर जाओ, यॉर ने अभी जो गुस्ताखी की उसके लिए माफी चाहती हूँ और खास तौर पर आपसे माफी मांगने आई हूँ। ये औरत आसान नहीं थी, ये मुझसे ताल्लुक बनाना चाहती है। ठीक है तुम जाओ, यॉर ने कहा, मैं इजाजत चाहती हूँ। वाह, बेली ग्रुप की छोटी शहजादी खुद माफी मांगने आई और ये बंदा बिल्कुल भी तमीज नहीं दिखा रहा। अगर तुम भी इतनी स्ट्रॉन्ग होते तो तुम भी ऐसा कर सकते थे। तुम लोग क्या कहते हो? ये लू यॉर और किसी का भाई ब्लैक फीदर किंग में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये भी कोई सवाल है? जरूर ब्लैक फीदर किंग ही होगा। ब्लैक फीदर किंग तो अभी के वक्त के सबसे मशहूर 5 टॉप एक्सपर्ट्स में शामिल है। ये बंदा चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, और वाकई स्ट्रॉन्ग होता तो इसका नाम हर जगह होता। मैंने उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि अपनी नजर पास रखे हुए वेपन पर लगा दी। अजीब बात है, वो तो सिर्फ इनिशियल रियलम लेवल 2 पर थी। पिछली जिंदगी में उसने 9 योंग 8 ट्रिग्राम प्लेट कैसे हासिल कर ली? क्या उसने कोई खास हिडन टैलेंट छुपा रखा है? जब मैं सोच ही रहा था तो किनान माउंटेन अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा और अगले लम्हे वो किनान माउंटेन जो 2 हिस्सों में तकसीम होकर आसमान जैसे एक बहुत बड़ी दरार क्रैक जाहिर हुई। ये मंजर देखकर सब लोग उस दरार की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन इसी वक्त उस दरार से अचानक एक काली परछाई निकली। लेकिन जब करीब गए तो पता चला कि ये एक बहुत बड़ा काला जायंट कैट बिल्ली था। देखा गया कि उसने फौरन आगे बढ़ने वाले एक आदमी को निगल लिया। ये मंजर देखकर सब लोग पीछे हट गए। इसी वक्त एक बड़ा आदमी जोर से गरजा, एक सांप ही तो है, इससे क्या डरना। फिर उसने अपना हथियार उठाया और हमला करने लगा। दूसरे लोग भी उसके साथ शामिल हो गए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो सब उस जायंट कैट का मुकाबला नहीं कर सके। थोड़ी ही देर में सब जख्मी होकर गिर गए। इसी वक्त लू यॉर ने अचानक अपने पर विंग्स फैला दी। एक झपटे में वो इस जायंट स्नेक के ऊपर पहुंच गई। उसने अपनी काली रोप को कंट्रोल किया और उस जायंट स्नेक की तरफ हल्का सा इशारा किया। स्वूश! डॉजिनोन काले परो ब्लैक फीदर्स अचानक तेज रफ्तारी से निकल गए और सीधा जायंट स्नेक की तरफ फायर हो गए। हालांकि ये पर उसकी हिफाजती लेयर को तोड़ने में कामयाब
ہو گئے، مگر اس سے وہ جائنٹ سنیک اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ پھر دیکھا گیا کہ وہ سانپ اچانک اپنا سر اوپر اٹھاتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں لیو یار کی روپ کو کاٹ دیتا ہے۔ بیلنس کھو دینے کی وجہ سے لیو یار آسمان سے گر گئی اور زور سے زمین پر آ گری۔ اسی وقت جائنٹ سنیک تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، جو حملہ کر رہا تھا وہ ہوا زیا ایلینز کا چوہنان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس جائنٹ سنیک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجبوراً اسے ہیڈ کوارٹرز کو سپورٹ کے لیے کال کرنا پڑا۔ ہیڈ کوارٹرز، مدد بھیجو، یہ سانپ بہت زیادہ طاقتور ہے، مدد آنے میں بھی ابھی 10 منٹ لگیں گے۔ 10 منٹ؟ میں صرف 3 منٹ تک ہی رک سکتا ہوں۔ جب انہیں پتا چلا کہ وہ جائنٹ سنیک کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو میں نے ایلائنس میں سلور آرمر سپیئر سمون اور ایک جمپ لگا کر سیدھا اس جائنٹ سنیک کے سر پر پنچ کیا، اور میں نے زور سے جب میں نے اپنا نیزر سپیئر زور سے چلایا تو سلور آرمر سپیئر کسی رکاوٹ کے بغیر آگے بڑھتا گیا اور ایک ہی لمحے میں اس جائنٹ سنیک کی زبان کو اوپر سے نیچے تک چیرتے ہوئے پار کر دیا، اور اس طرح آسانی سے اس جائنٹ سنیک کو مار دیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر چو ہیوں بھی سکتے میں آ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس جائنٹ سنیک کو وہ اپنی پوری طاقت سے بھی نقصان نہیں پہنچا سکا، اسے میں نے ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ اسی وقت اسے یاد آیا کہ پہلے بھی شاید میں نے ہی جنگان شہر کے آسمان میں اس سلور آرمر زوان جیو کو ختم کیا تھا۔ جب خطرہ ختم ہو گیا تو سب لوگ دیوانگی سے اس سنہری درار گولڈن کریک کی طرف دوڑ پڑے۔ جب وہ سیکرٹ ریئلم کے اندر گئے تو پتا چلا کہ اندر ایک گھنا جنگل تھا اور جنگل کے بیچ میں ایک پرانی سی ٹاور جیسی عمارت کھڑی تھی۔ یہ وہی فلوٹنگ پگوڑا فوٹو ٹاور تھا جس کا ذکر پہلی زندگی کے خبروں میں ہوتا تھا۔ جب ہم ٹاور کے اندر گئے تو اندر صرف ایک سیدھی اسپائرل سیڑھی جو ٹاورز کے ٹاپ تک جاتی تھی دیکھنے میں بالکل عام سی لگ رہی تھی، لیکن جب سب لوگ اس پر چڑھنے لگے تو انہیں پتا چلا جتنا اوپر جاتے جاؤ اتنا ہی زیادہ گریوٹی وزن بڑھتا جاتا ہے۔ ذرا سی لاپرواہی سے بندہ سیدھی سے نیچے گر سکتا ہے۔ میں نے جلدی میں ٹاور پر چڑھنا شروع نہیں کیا بلکہ ایک طرف چھپ کر اس کا مشاہدہ کرتا رہا۔ آخر 9 یونگ 8 ٹریگرام پلیٹس ہی میرا اصل ٹارگٹ تھا، اور میری طاقت کو دیکھتے ہوئے اس فلوٹنگ پگوڑا پر چڑھنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب میں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا تو وہ کیون بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ شروع میں وہ آسانی سے اوپر چڑھ رہا تھا، لیکن جب وہ 19th لیول پر پہنچا تو آخرکار رک گیا۔ اس وقت اسے لگا جیسے اس کے اوپر ایک پورا ٹائشان پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ وہ ایک قدم بھی نہیں ہلا سکتا تھا، حالانکہ وہ بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن آخر اس نے ہار مان لی اور نیچے ہال میں واپس آ گیا۔ وہ کیون پھر دوسری طرف چل پڑا، سائیڈ والے دروازے کی طرف چل دیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں فوراً چونک گیا، بالکل ویسے ہی جیسے مجھے شک تھا۔ یہ 8 ٹریگرامز پلیٹ فلوٹنگ پگوڑا کے اندر نہیں ہے۔ پھر میں چپکے سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ فلوٹنگ پیگوڈا سے نکلنے کے بعد ویو کیون نے اندازے سے ایک رخ چنا اور سیدھا جنگل کے اندر گھس گیا، لیکن کچھ دور بھی نہیں گیا تھا کہ ایک بے جان مانسٹر اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ مانسٹر بہت مضبوط جسم والا تھا، دیکھنے میں بالکل شیر جیسے لگ رہا تھا، لیکن اس کے ماتھے کے بیچ میں ایک لمبی سی سینگ ہارن تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کیون بہت گھبرا گیا۔ پھر وہ پلٹ کر دوسری طرف بھاگنے لگا، لیکن وہ مانسٹر اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، لگاتار اس کے پیچھے لگا رہا۔ جب وہ مانسٹر اس کے بالکل قریب پہنچنے ہی والا تھا، وہ کیون نے اچانک ایک جھٹکا دیا اور ایک طرف ہو کر جھپٹ کر گھس گیا۔ تنگ سی درار چھوٹی سی رسی یا کریک کے اندر گھس گیا۔ پیچھے سے آنے والا بیسٹ اپنے بہت بڑے جسم کی وجہ سے اس درار پر کچھ دیر تک کوشش کرتا رہا، لیکن پھر ہار مان کر واپس چلا گیا۔ وہ کیون نے جب خطرہ ختم ہوتے دیکھا تو وہ گفا کے اندر گہرائی کی طرف چل پڑا۔ گفا کے اندر بہت اندھیرا تھا، صرف دروازے سے آنے والی چند کناروں کے علاوہ کوئی روشنی موجود نہیں تھی۔ کافی تفصیلی تلاش کے بعد اسے اندر ایک خزانہ مل گیا۔ گفا کے سب سے اندر والی دیوار کے پاس آدھا میٹر اونچا ایک پتھر کا چبوترا تھا۔ اس چبوترے پر ایک 8 ٹریگرامز پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کیون بہت خوش ہو گئے، لیکن جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھا کر
उसे उठाने लगा, एक हाथ ने अचानक उसका गला पकड़ लिया और अगले ही लम्हे वो पूरी तरह बेहोश हो गया। माफ करना, ये 8 ट्रिग्राम्स प्लेट मेरी है। ये कहते हुए मैं आगे बढ़ गया। मैंने वो 8 ट्रिग्राम्स प्लेट अपने हाथ में ले ली। जैसे ही मेरा हाथ उससे लगा, वो पुरानी धूल से भरी हुई प्लेट अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठी। 2 मिनट और 30 सेकंड के प्रोसेस के बाद ये 8 ट्रिग्राम्स प्लेट्स पूरी तरह मेरी मालिक बन गई। फिर मैंने उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे और इस प्लेट के दरमियान एक अनोखा सा रिश्ता बन गया है। फिर मैंने उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब 9 योंग 8 ट्रिग्राम्स प्लेट मेरे हाथ आ चुकी थी। अब अगला स्टेप फ्लोटिंग पेगोडा को ट्राई करना था। लेकिन जैसे ही मैं गुफा से बाहर निकला, वो टाइगर जैसा बीस्ट मुझ पर हमला करने आ गया। ये देखकर मैंने फौरन 9 योंग 8 ट्रिग्राम्स प्लेट एक्टिवेट की। देखना था कि इस आर्टिफैक्ट की पावर क्या है। प्लेट के अंदर से अचानक पहले से लिखे हुए 8 अल्फाज सिंबल्स उभर आए। ये 8 अल्फाज एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर मुझे बीच में सिक्योर कर रहे थे। चाहे वो टाइगर बीस्ट कितना भी हमला करता, वो इस शील्ड को तोड़ नहीं सका। ये देखकर मैंने सिल्वर आर्मर स्पेयर सुमून की और उस पर हमला कर दिया और फिर उसने उसे मार दिया। इस टाइगर जैसी बीस्ट की ताकत बहुत कम थी। वो 9 यांग 8 ट्रिग्राम्स प्लेट की असल पावर को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सका। उसे खत्म करने के बाद मैं फिर फ्लोटिंग पैगोडा की तरफ चल पड़ा। क्योंकि सीक्रेट रियलम का वक्त अब ज्यादा नहीं था, मुझे जितनी जल्दी हो सके टावर के टॉप तक पहुंचना था। फिर मैं तेज रफ्तारी से फ्लोटिंग पैगोडा की सीढ़ियों तक पहुंच गया। ये प्रेशर मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड्स में मैं 30th फ्लोर तक पहुंच गया। ये मंजर देखकर चू हनियन भी हैरान रह गया। ये बंदा इंसान है भी या नहीं? ये तो बहुत ज्यादा एग्जेगरेटेड है। असल में फ्लोटिंग पैगोडा का टॉप एक सीक्रेट रूम था और उस सीक्रेट रूम के बीच में एक पत्थर का पिलर था। जब मैंने पिलर के बीच में बनाए हुए खाली हिस्से को देखा तो मैं फौरन रुक गया। ये शेप बिल्कुल वैसे ही था जैसे मेरे 8 ट्रिग्राम्स प्लेट थे। क्या इसका मतलब ये है कि जो 8 ट्रिग्राम्स प्लेट्स मुझे मिला है वो इस पूरे फॉर्मेशन एरे की है? ये सोचकर मैंने फौरन 8 ट्रिग्राम्स प्लेट्स उस जगह फिट कर दिया और जैसे ही प्लेट्स और पिलर एक साथ जुड़ गए, उसी लम्हे मेरे पैरों के नीचे जो क्लिफ जैसा फॉर्मेशन था वो अचानक एक्टिवेट हो गया। पूरी सीक्रेट रूम में एक ठंडी और गहरी रोशनी फैल गई। फॉर्मेशन धीरे धीरे एक ऐसे एनर्जी स्फीयर में तब्दील हो गया जो सूरज जैसा चमक रहा था और आखिर में वो एनर्जी पिलर के ऊपर रखे हुए 8 ट्रिग्राम्स प्लेट में मर्ज हो गए। 8 ट्रिग्राम्स प्लेट उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी सतह पर एक लाल रंग की चमकती हुई रोशनी आ गई जो लगातार घूम रही थी। ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा था। फिर जैसे ही मैंने उस 8 ट्रिग्राम्स प्लेट को टच किया, रीफोर्ज्ड 9 यांग 8 ट्रिग्राम्स प्लेट्स दोबारा मेरे जिस्म में मर्ज हो गईं। जल्दी ही मुझे उसके नए एबिलिटी का पता चला। रिफ्लेक्शन डैमेज ये अटैक को वापस दुश्मन पर रिफ्लेक्ट कर सकता है। फ्लोटिंग पैगोडा कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि सीक्रेट रियलम बंद होने से पहले मजीद एक्सप्लोर कर लूं, लेकिन काफी देर घूमने के बावजूद मुझे कोई खास चीज नहीं मिली। लगता था कि इस सीक्रेट रियलम में अब कोई और अपॉर्चुनिटी बाकी नहीं। मैंने उस वक्त देखा कि एक सफेद रोशनी फैल गई। उसके फौरन बाद आसपास का माहौल बिगड़ने लगा, ट्विस्ट रैप होने लगा। अगले ही लम्हे सीक्रेट रियलम के अंदर जितने भी लोग थे वो दोबारा वापस टेलीपोर्ट हो गए। इस तरह सीक्रेट रियलम का सफर यहीं खत्म हो गया। रुआन साहिब किनान माउंटेन वाली जगह का मामला ज़ाओलाओ ने उसने हमारे तमाम लोगों को मार दिया है। लानत है ज़ाओलाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुआन मालिक, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका था कि जियानगन शहर में एक बेमिसाल ताकतवर शख्स छुपा हुआ है। अगर तुम मेरी बात
बात मान लेते तो तुम्हारा बेटा इतनी आसानी से नहीं मरता। अब बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया है। रुआन यानफिंग के अपने 3 बेटों में ताकत दूसरे नंबर पर थी। ये सब ज़ोउ लो की वजह से हुआ था। सब कुछ बर्बाद हो गया। रुनान मलिक, अब तुम मेरे पहले वाले शर्तों पर गौर कर सकते हो। मुझे मेरी अधूरी डिजास्टर सेंट बॉडी को पूरा कर दो और फिर मैं तुम्हारे साथ मिलकर ज़ोउ लो को खत्म कर दूंगा। ठीक है? ठीक है। सीक्रेट रियलम बंद होने में अब सिर्फ 20 मिनट्स रह गए हैं, इसलिए मैंने एक कोने में जाकर इंतजार शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद आसमान में अचानक एक रोशनी चमकी। इसके बाद आगे एपिसोड में क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।